when I earned like $15 per hours, then he said that ठीक है बेटा तुम you have to work for 9 to 5 jobs, but it's wrong. In India, you have to work from 9 to 5, 9 to 10, and sometime it will be 11 p.m. or like 12 p.m. So that's why I think that freelancing is good option. And अपना पहला प्रोजेक्ट कितने डेज में लैंड किया था, मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद? approx 1 week to 2 weeks. I didn't recognize like exact date, but yeah, it will be 1 or 2 weeks. 1 आवर के $15 चार्ज किए, जो कि बेसिकली 1300 अप्रोक्स हो रहा है अभी। On $30 for 2 hours. क्योंकि अगर एज ए फ्रेशर्स अगर मेरे पास जॉब्स नहीं है तो इट विल क्रिएट गैप, एकेडमिक गैप, एंड इन फ्यूचर इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। मैं अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूं तो ये एक्सपीरियंस मैं रेज्यूमे में ऐड होगा। मैं ये कह सकती हूं कि मैं 1 साल या 2 साल एज अ फ्रीलांसर में काम किए, और मैं फैमिली को बोल सकती हूं कि मैं एक अच्छा खासा अर्न कर रही हूं, सो देयर इज नो नीड टू डू जॉब 9 to 5 jobs in a company. So started giving me $15 per hours, and that project is not so big. Like for front end, it will be it's good. Like काजल, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं पहले। yeah, I am fine. I am Kajal, as you say, and belong from Patna, Bihar. And I have just completed my BTech degree from Computer Science and Engineering in 2025. And I am a freelancer, skilled in full-stack developers. So through this video, I want to tell my journey, that how I started my freelancing and what motivates to start this freelancing journey. सो काजल, थोड़ा सा ये बताएं, जैसे अभी आप 2025 में ग्रेजुएट हुए, राइट? एंड एक जो फ्रेश लेवल पे कोई पर्सन ग्रेजुएट होता है तो उसको थोड़ा रहता है कि भाई अब आगे हमें सिर्फ जॉब चाहिए, एक माइंडसेट में रहता है कि अपने को जॉब चाहिए, राइट? तो आप जब ग्रेजुएट हुए थे तो आपने कितने इंटरव्यूज दिए? From August 2024, I am giving my first interview. After that, I have given many interviews. I can't like count that how much I have given, but I मतलब आप अपने and from थर्ड there. ईयर से, जी ओके, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप अपने थर्ड ईयर से इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिए थे, ओके, ऐसा ही क्या? Yeah. Yeah, in third year, I have started giving my interview for intern, and in fourth year, my fourth year I started from July 2024, and from there I started giving interview on campus and also off campus, ओके, and चलिए। until now I am giving interview. अच्छा, अभी तक आप दे रहे हैं। नहीं, मेन तो ये है कि जैसे आप फिर 2025 में ग्रेजुएट हुए, अपने अपने स्टडी कंप्लीट किया, राइट? एंड उसके बाद फिर भी अगर एक रफ नंबर अगर हम आपसे पूछे कि आपने कितने इंटरव्यूज दिए होंगे अभी तक, तो क्या नंबर आप मतलब बोलना चाहेंगे? कितने इंटरव्यू? One interview is already I have given today. जी, 3, ओके। 4, and it will be approx. I have started giving interview for 1 year, and in 1 week I got review like I got for 1 or 2 companies for interview. So एक पर्सन जो आपने बोला कि मतलब आपने बताया था मुझे कि आप पटना से बिलोंग करते हैं, राइट? सो वहां से अगर कोई पर्सन निकल रहा है तो उसके मन में मतलब कितनी ज्यादा है कि भाई अगर अपने को सक्सेसफुल होना है तो फिर एक ही है कि ठीक है, जो अपने पास पाथ है, जो रोड है, उसके साथ अपने को चलना है, जो कि है 9 to 5 जॉब। उसके लिए आपने इंटरव्यूज दिए, राइट? अगर मैं रफ पूछूं, जैसे आपने मेंशन किया था नौकरी, राइट, नौकरी.com एंड ऑल, एंड आप लिंक्डइन पे भी एक्टिव है, राइट? तो अप्रोक्स आपने वहां से आज तक कितने लोगों को अप्लाई किया होगा, कितने पोर्टल्स पे आपने अप्लाई किया होगा? then I have applied for approx 100 to 200. Like every day from LinkedIn, I have applied approx 10, 5, and from 2 months, I actively involved in LinkedIn, Upwork.com,
and other platforms. And in 2 months, I have applied 1,000 plus on only on Naukri.com. And after that, I have applied in Insta Hires and Glassdoor. And I can't get how much in how much company I have applied, Okay. and I got rejected many interviews. Campus. It will be 3 to 4 interview where no, only 2 or 3 I got rejected because for that I have to first clear my online assessment that I didn't able to clear. ओके सो देखिए जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने 1000+ जगह पे अप्लाई किया, राइट? तो मैं समझता हूँ कि जो अभी तक हमसे स्टूडेंट मिले वो मतलब 4 to 5 जगह पे अप्लाई करते हैं अपने नौकरी के लिए, एंड फिर भी वो मतलब ढूंढ रहा हूँ चीज तो चलो ओके। एंड बेसिक तो क्या है कि जैसे ना जब हम इंटरव्यू देते हैं एज अ फ्रेशर, ठीक है, आप फ्रेशर हो, राइट? आपने मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, आपने प्रोजेक्ट किए अपने एकेडमिक्स में, ओके, आपने प्रोजेक्ट किए हैं, उसके बाद जब आप एज अ फ्रेशर जाते हो और आपको सबसे पहले वो पॉइंट आउट करते हैं कि भाई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं हुआ, राइट? एंड मुझे लगता है कि आप रिजेक्शन वगैरह मेंशन कर रहे हो उसके अंदर एक्सपीरियंस ना होने वाला कितना ज्यादा परसेंटेज है? Like on campus, I got rejected from 2 interviews, not 2 or 3 interviews, and in online assessment, I got rejected from everywhere, and that's and off campus, I got rejected from many companies, and there is the only reason that I have no experience, and they didn't select my first. They didn't select my resume because I have no experience, and from 2 months each week I go to two interview calls, and from there I got rejected. ओके, ओके, गॉट इट। या एंड आप अभी मतलब बैंगलोर में रह रहे हैं, राइट? एक सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया में रह रहे हैं आज के समय में, तो वहां पे आप जब देखते हो कि लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड उस माहौल में रहने के बाद, राइट, उस माहौल में रहने के बाद आपने डिसीजन लिया कि मुझे फ्रीलांसिंग करना है, तो आपको मतलब थोड़ा सा फियर नहीं लगा, डर नहीं लगा कि यार मैं फ्रेशर हूँ, कैसे मेरे को फ्रीलांसिंग जॉब मिल जाएगा? नो, एक्चुअली अगर मेरे को डर लगता तो फिर शायद बैंगलोर नहीं आती, क्योंकि कि एक फ्रेशर्स विदाउट अर्निंग, हाउ कैन योर पेरेंट्स लाइक ट्रस्ट यू दैट यू विल गेट जॉब और नॉट। सो मेरे को फेयर तो लगा ही नहीं। मैं पहले तो बैंगलोर आई, मैं जॉब देखी, एंड 4 to 5 company give me an assignment and ओके, to ओके, build a full stack web app, and interview parts, and rejected me because of experience. I have no experience, or and also I got selected in one companies, and they decide to pay me very less and said that you have no any experience, that you have only one experience as an intern. So there I think that जो टाइम मैं एक असाइनमेंट बनाने में दे रही हूँ, अगर मैं वही टाइम एज अ फ्रीलांसर दे दूँ, ये मेरे रिज्यूमे को बूस्ट करेगा, एंड आल्सो इट इट एड एक्सपीरियंस इन माय रेज्यूमे। सो उस कारण से मोटिवेट मी टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, और लाइक एज अ फ्रेशर्स देयर इज समथिंग दैट मैं यहाँ से क्या मतलब या तो कुछ पाऊंगी या तो कुछ मतलब खोने का कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ठीक है। अगर मेरे को कुछ लाइक कुछ I will get experience of working as a freelancer. That's why मतलब खोने का डर मेरे को फ्रीलांसिंग में कुछ था ही नहीं, बिकॉज इन दिस फील्ड आई हैव नो एक्सपीरियंस। सो सिर्फ लाइक अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ओके। ओके, गॉट इट, एंड राइट।
लेकिन I started posting portfolio link every day on Twitter, LinkedIn, and Discord. वेल I got frustrated that I didn't have reaction from this platform, but after some days, I ओके ठीक है। मतलब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे अगर एक पर्सन है वो इस चीज में इंटरेस्टेड है कि मुझे ना मतलब इंटर्नशिप मिल जाए, इंटर्नशिप करना है, ओके। एंड इंटर्नशिप में मतलब आज के समय में मोस्टली इंटर्नशिप 95% ऑफ द इंटर्नशिप जो रहते हैं जीरो पे ऑफर किए जाते हैं, राइट? आपको भी पता है, आप मतलब मार्केट में है इस वक्त। सो yeah, actually, I जी, और यहाँ पे एक एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने ये डिसाइड किया कि भाई दूसरों के लिए इंटर्नशिप करना या फिर सिर्फ इंटरव्यू के नाम पे उनको वेबसाइट डेवलप करके देना, उससे बेटर ये है कि मैं अपना खुद का फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करूं। और जो ये इंटरव्यूअर मुझे एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, एंड जब मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ तो ये कह रहे हैं कि आपने एक ही इंटर्नशिप किया हुआ है, तो वहां पे मैं जस्ट शो करती हूँ कि मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है, अर्निंग भी किया हुआ है, और अपने आप को एक एक्सपीरियंस पर्सन पोजीशन कर सके, राइट? एग्जैक्टली ये yeah. ठीक है। सो अब मैं एक 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसे आपने ना मेंशन किया कि आप ट्विटर से किए, आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया, आपने अपने प्रोफाइल पे पोस्टिंग करना स्टार्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, आपने जो आज तक स्टडी किया वही आपने पोस्ट किया, राइट? जी First, I build portfolio. Like this will take 2 to 3 days to build a good portfolio. From there, I think that I have. ठीक है। सो जैसे क्या है कि 2-4 दिन अपने को लगेंगे पोर्टफोलियो वगैरह बिल्ड करने में, उसके बाद कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आज के समय में, देखिए 30+ डिफरेंट एप्लीकेशन है फ्रीलांसिंग के लिए, राइट? आपने चलो उन सबको अभी यूज नहीं किया, लेकिन आप करने वाले हैं सभी को यूज, है ना? सो आपने मेंशन किया था कि आप ट्विटर से जॉब ले रहे थे, ट्विटर पे आप पोस्टिंग कर रहे थे, लिंक्डइन पे पोस्टिंग कर रहे थे, तो आप कैसे, मतलब ऑब्वियस सी बात है आप पहले दिन पे तो लैंड नहीं किए रहोगे प्रोजेक्ट, एम आई राइट? जी Yeah. जी। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है। Like हाँ जी, मैं ये कह रहा था, जैसे हमें ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है एज अ फ्रेशर, जब आप कॉलेज से निकल रहे हो, राइट? 4 years ऑफ एजुकेशन के बाद तो एक ना एक डेस्परेशन रहती है कि बस यार अब तो हो गया मेरा स्टडी, अब तो मुझे सीधा लैंड करना है जॉब पे, मुझे बस 20-25 हजार की जॉब चाहिए और स्टार्ट करना है, राइट? लेकिन yeah. ऑब्वियस सी बात है, सोसाइटी ऐसे वर्क नहीं करती। जो हमारी टेक्निकल नॉलेज हो तो ठीक है, लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंग अपने को और भी नॉलेज स्किल डेवलप करना पड़ेगा, राइट? तो ऑब्वियसली बात है, आपने मतलब अपने अपने आप को थोड़ा स्ट्रगल किया है 3rd year से, राइट? 1 year का स्ट्रगल किया है, सीखा, समझा, मार्केट को समझा, एंड उसके बाद आपने उस अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो बिल्ड किया। एंड मतलब आपने लर्न किया कि भाई पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद आपने लैंडिंग करना स्टार्ट किया। ये ऐसा ही था कुछ, राइट? ओके। सो Yeah. यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बहुत ज्यादा डेस्परेशन में है कि बस यार मुझे पहले दिन पे ही रिजल्ट चाहिए, पहले दिन पे ही क्लाइंट चाहिए, तो यहाँ पे अपने आप को कैसे आपने मेंटेन किया, और कितने दिन में आपने अपना पहला फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लैंड किया? Like मैं तो जब फ्रीलांसिंग का स्टार्ट तो थोड़ा लगता है कि एक दिन में मिल जाए, 2 दिन में मिल जाए, बट I have experience of waiting. Like you know that I am a job seeker and waiting from approx like third year to fourth year for getting a good jobs. जी जी So ये मेरे अंदर पैशन था कि मेरे को इतना मतलब और हैंडल करना है, and already I affected to suffering from not getting jobs. तो फ्रीलांसिंग मेरे को मतलब हाँ था, इसका से मैं पोर्टफोलियो और जल्दी कंप्लीट की। लाइक मैं आता था घर, रात में बैठ के मैं सोचती थी नहीं आज तो इतना कंप्लीट कर ही लेना है, दैट सो दैट आई कैन पोस्ट एज सुन एज पॉसिबल। सो
पोर्टफोलियो कंप्लीट करने के बाद मैं डेली मेल वगैरह चेक करती थी, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में मेल और कांटेक्ट सब दिए हुए थे, तो फिर मैं डेली पोर्टफोलियो लाइक मेल चेक करती थी, ईमेल्स, क्योंकि हो सकता है मैं एक क्लाइंट मिल जाए, एंड देन इन दिस कोड, बट जस्ट फॉर 1 week and uh, in I wake up and I got an email from USA, and the client mentioned that he wants a front-end developer for his project because he knew backend, but he has a small project, and if they will like he when he happy with my work, then he will give me more projects in futures. So, and he said that you have to connect on Discord. There I can discuss projects and yeah, and money, something like how much get. So in Discord, from there, he has started giving me $15 per hours, and that project is not so big. Like for fronted, it will be. It's good. Like they want that it will be good landing, like landing framework motions and some products. So and that after time he said he wants only like he has only uh, $630 for this, and time I decided like this is he's my first client, and at this time जब भी कुछ फर्स्ट काम मिलता है तो हम लोग को पैसे पे ध्यान ना दे के हमको उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए कि मैं एक अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करूंगी, देन आई विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी दैट क्लाइंट्स. So I focus like I have worked 5 to 6 hours, but I will get only 2 hours. Like pay amount, like he paid only for 2 hours, and yeah, and he was like impressed with my work, and पैसे से ज्यादा तो like मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी था कि वो मेरे काम से impress हो, रिव्यू अच्छा दे, so that it will work for my futures. ओके That's it. ओके, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. एंड आपने अपना पहला प्रोजेक्ट कितने डेज में लैंड किया था, मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद? Approx 1 week to 2 weeks. I didn't recognize like exact date, but yeah, it will be 1 or 2 weeks. मतलब 2 वीक अपने को लग गए थे, राइट? हम भी यही कहते हैं. बाकी जैसे आपने वहां पे जो भी अर्न किया, राइट, लेकिन ये उससे तो बेटर था ना कि हम एक सिचुएशन में ही फंसे जहाँ पे हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं और हमें हमारे पास आ कुछ नहीं रहा है. हमने मतलब $1 के 1 आवर के $15 चार्ज किए, जो कि बेसिकली 1300 अप्रोक्स हो रहा है अभी इंडियन रुपीस में, राइट? तो अगर मान लेते हैं कि आपने मतलब टोटल ड्यूरेशन कितना वर्क किया था? For 2 hours. 4 आवर्स का वर्क किया था आपने? Like, 4 आवर्स के yeah, I have worked for 4 hours. But I have mentioned that he has only like he want like उसके पास सिर्फ 2 घंटे का ही पैसा था, and so he is also said that he not work like 4 to 5 hours. आप सिर्फ थोड़ा प्रोजेक्ट करके दे दो, ज्यादा लाइक उसको नहीं चाहिए क्योंकि सिर्फ वो 2 घंटे का ही पे कर सकता है. बट आई डिसाइडेड दैट मेरे को पैसे पे ना ध्यान देके मेरे को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए. आई शुड प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी सो दैट आई कैन गेट अ गुड रिव्यू. सो आई वर्क फॉर 4 to 5 hours and I get on $30 for 2 hours. एग्जैक्टली. मतलब अगर आप $30 भी मानेंगे तो राइट, जो बीएमएस के साथ कहीं ना कहीं स्टार्ट कर रहे हैं 700-800 में, एक दिन में आप वर्क करके अप्रोक्स 2600-2500 के आसपास आपने अर्न किया, राइट? ये कोई बैड अमाउंट नहीं है, लेकिन आपके लाइफ के लिए, आपके फ्रीलांस करियर के लिए आपको एक स्टेप मिला.
एंड ये स्टेप को हम जब धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आज हम सिर्फ $30 अर्न कर रहे, हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद, 4 क्लाइंट्स के बाद हम $300 पे लैंड करना स्टार्ट करें, राइट? तो ये मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब Can you repeat your questions because I unable to hear because of some network issue. जी जी मैं कर देता हूँ। जैसे अभी हमने मतलब 1 डे में अप्रोक्स 2500 रुपीज अर्न किए, राइट? 4-5 आवर्स का वर्किंग किया, इसको दिया एंड इस अपना मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट किया, राइट? अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें खुद का प्रोटोटाइप बिल्ड करना है, राइट? हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो पे, ये रिव्यूज को हमें अपने पोर्टफोलियो पे ऐड करना है, राइट? तो इसके बाद आपका नेक्स्ट गोल क्या है? मतलब आप Yeah. फ्रीलांसिंग को लॉन्ग टर्म देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? मैं फ्रीलांसिंग को लॉन्ग टर्म देख रही हूँ और लाइक सब लोग चाहते हैं कि घर बैठे काम करें, दैट्स व्हाई आई थिंक दैट फ्रीलांसिंग इज गुड ऑप्शन एंड as like I have to like in a startup company people say that you have to work for 9 to 5 jobs, but it's wrong. In India you have to work from 9 to 5, 9 to 10, and sometime it will be 11 p.m. or like 12 p.m. So that's why I think that freelancing is good option, and you will get paid for per hour. हाँ That's why. मतलब एक सबसे होता है ना कि भाई मैं काम तो कर रहा हूँ, मैं जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन ना मेरे को उतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही है। मेरे को काम तो बहुत ज्यादा दे रहे लेकिन सैलरी उतना नहीं दे रहे। तो अगर आप मतलब कोई इंसान ये भी है कि भाई वो कॉर्पोरेट में है अपने, राइट? 9 to 5 से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस, वो भी कर सकता है। एक फ्रेशर है जो एकदम बेसिक लेवल पे, मतलब एकदम फ्रेशर, जैसे आप अभी एज अ फ्रेशर ही आपने स्टार्ट किया, राइट? तो ऑब्वियसली बात है इसके लिए सपोर्ट एंड ऑल सब चीज की जरूरत है, राइट? एंड बाकी जो 30 मेंटोर्स है जो फ्रीलांसिंग को इस तरीके से सिखा रहे हैं बीएमएस ग्लोबल के साथ, इसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट क्या है? मतलब ये कितना ज्यादा हेल्पफुल है किसी के लिए? Yeah, BMS option for growing and getting opportunity as a freelancer, because in BMS Globe there are 30 plus experienced mentors, and from there who wants to start freelancing, they can get first project of client. Right, and at this time the golden opportunity for all new freelancers. I think that BMS Global is एग्जैक्टली, राइट? ठीक है। ये तो चलिए लोगों के अपने व्यूज पे डिपेंड करते हैं कि उनको कितना ज्यादा अर्जेंसी अपने लाइफ में ग्रो करने की। नहीं हो तो देखो मुझे लगता है जॉब इंटरव्यू देने जाते हो तो आप वहां पे, चलो गूगल पे इंटरनेट पे तो हमें दिखता है कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जिस भीड़ में जाके जब हम बैठते हैं पहली बार में, फर्स्ट टाइम में, राइट? तो उससे तो बेटर है ना कि हम मतलब फोकस कर पा रहे हैं अपने करियर पे, एक हमारे पास वे है, राइट? जो इंसान क्या एक आते हैं लोग लाइक कि मैं जो फ्रेशर्स बोलूँ तो फैमिली फ्रेशर्स होते हैं, लाइक यू हैव टू टेक जॉब्स फ्रॉम इन दिस एज, एंड ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूं और एक्सपीरियंस हो, क्योंकि अगर एज ए फ्रेशर्स अगर मेरे पास जॉब्स नहीं है तो इट विल क्रिएट गैप, एकेडमिक गैप, एंड इन फ्यूचर इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। मैं अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूं देन ये एक्सपीरियंस मेरे रेज्यूमे में ऐड होगा। मैं ये कह सकती हूँ कि या मैं 1 साल या 2 साल एज अ फ्रीलांसर में काम किए, और मैं फैमिली को भी बोल सकती हूँ कि मैं एक अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ, सो देयर इज नो नीड टू डू जॉब 9 to 5 जॉब्स इन अ कंपनी। एग्जैक्टली। एंड अगर आपके पास जैसे सपोर्ट ऐसे मिल रहा है, सारी चीज हो रही है, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़, जस्ट मैं ये कह रहा था जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जो ये स्टार्टिंग में कहते हैं कि भाई पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, राइट? एंड और भी अलग अलग टाइप के उनके पास रहता है कि नहीं मुझे ये अभी इसके लिए टाइम नहीं है एंड ऑल। तो
वो सिचुएशन से कैसे निकलना चाहिए एक स्टूडेंट को? ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ था कि पर मेरे पापा बोले कि लाइक तुम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो बट देयर विल बी सम जॉब्स लाइक इट विल बी सिक्योर फ्यूचर्स and after that when I earned like $15 per hours then he said that ठीक है बेटा तुम 2-3 साल तो करो बट लाइक जॉब्स रहे बट साइड से तुम फ्रीलांसिंग कर सकती हो राइट राइट so I think parents will agree like सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके पास रहे and freelancing is a remote jobs that's why I think they एग्जैक्टली। will be agree आप सोच के देखिए ना, अगर कोई इंसान 50,000 रुपीज अर्न करना स्टार्ट करता है अपने करियर के स्टार्टिंग और 40 साल तक वो वर्क करता है, तो 2 से 2.25 करोड़ के आसपास वो अपने लिए अर्निंग कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है कोई भी, ठीक है। इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है एक नॉर्मल जॉब से। yeah और यहाँ पे जैसे हमारे, चलिए पेरेंट्स तो ओल्ड है, हम नए, हम समझ में कि भाई सोसाइटी कैसे रन कर रही है, राइट। और हमने वही 1-2 करोड़ रुपए विद इन 5 to 10 years अर्न कर लिए फ्रीलांसिंग के थ्रू, राइट। तो उसके बाद भाई आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि ठीक है, आप उसको इन्वेस्ट करके काफी सारे अर्न कर सकते हैं, राइट। एक बेटर ऑप्शन ये, आप एफडीज कर सकते yeah हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, एंड जिसके थ्रू आपको फिर जॉब करने की जरूरत है नहीं, आपके पैसे ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होते रहेंगे, राइट। ठीक है। सो yeah ओके, एंड एनीथिंग यू वांट टू से रिगार्डिंग बीएमएस ग्लोबल और फ्रीलांसिंग? कुछ कोई चीज आप ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से? like yeah, BMS Global is a good platform for starting opportunities and freelancing and growing with BMS